Hello everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Today in the series of our personal year predictions for the upcoming year 2026, we are going to do the reading for personal year number 5 कि number 5 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है आने वाला and what can they expect. The readings we are doing the readings as per numerology and tarot mix करके हम उसमें लेकर आ रहे हैं उस एलिमेंट को. So I am hoping that you're liking the other readings as well. If you are, please previous readings को भी share करिए for the same numbered people. And yeah, that is about it. So as always, I'm going to spread my cards. Please put an intent, whatever be for the highest good of the people who are watching this or people who resonate to personal year 5 energies. Please that should come across. So I have drawn out my cards before I proceed. Again, personal year 5 की जब हम बात करते हैं, 5 is related to planet Mercury. It is known for its communication. It is known for its again expansiveness to an extent. They are known to be very charming people. And number 5 जो होते हैं, जो Mercury का aspect है, it is like it knows how to balance, how to create a balance. आपसे इस कदर कम्युनिकेट करेगा अपनी बात को कि you'll be mesmerized and unknowingly आप उनकी बातों में भी आ जाते हैं and then you agree to it as well. So that is how number 5 works for itself. So when we talk about the personal year 5, जो भी हमने कार्ड्स निकाले हैं, we'll see how it resonates to that. So जो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है फॉर पर्सनल ईयर 5, इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप फ्रंट पे. नंबर 5 वालों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल टाइम. आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा इस ईयर. आप you will feel excited to be around your family, to be around your friends. आपको अच्छा लगेगा. You'll be ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉन्स्टेंटली लोगों से घिरे हुए रहें दिस पर्टिकुलर ईयर. बहुत सारी गैदरिंग्स हो सकती हैं आपकी फैमिली में और नोन पीपल और रिलेटिव्स. तो दैट इज़ हाउ द ओवरऑल टोन फॉर द ईयर इज़ गोइंग टू बी. ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड ईयर रहने वाला है फॉर पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर एज 5. अगेन you need to take care of one thing here कि जितने भी different relationships हैं life में, you are able to somehow allot equal amounts of time to each one of them. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई left out feel कर रहा है. Although 5 is a good balanced number and balance create करना उनको आता है. So जिनका personal year 4 रहा है, they have worked very hard the last year. they would have felt मतलब अब उनको फील हो रहा होगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड कर लिया है इस ईयर. तो नेक्स्ट ईयर जो है, इट इज़ गुड रिलैक्सिंग टाइम फॉर देम. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर देम. रिलेशनशिप्स में आपका इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर relationships overall. And also for people who are wanting to expand their families, जहाँ पर यू वांटिंग कि आपकी लाइफ एक्सपैंड हो, मतलब फॉर पीपल हु आर बेसिकली विलिंग टू गेट एंगेज्ड और मैरिड, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है ये. सो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड फॉर पीपल हु आर इन देयर पर्सनल ईयर 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, दिस इज अबाउट योर करियर. On the same lines, continuing की relationships में you will be meeting a lot of people and in a very happy go lucky jolly mood में रहने वाला है ये ईयर आपके लिए. करियर में आपको एक्सपेंशन इस ईयर में तब मिलेगा जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करोगे.
जब आप 4 में होते हो तो यू टेंड टू जस्ट बी टू आप सिर्फ अपने में सिमट जाते हो एक तरीके से, बिकॉज आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है इन पर्सनल ईयर 4 कि आपके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो जब हम उस 4 के हार्ड वर्किंग ईयर से, डिसिप्लिन्ड ईयर से निकलते हैं ना बाहर, तो वी फील अ लॉट ऑफ कि जैसे हमारे शोल्डर्स पे ना बहुत ज़्यादा वेट रखा हुआ था किसी ने, एंड दैट हैज़ बीन लिफ्टेड ऑफ इमेंसली व्हेन वी मूव इनटू द ईयर 5। तो 5 की जब मैं बात कर रही हूँ तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए तब आएंगी, आप चाहे and by career opportunities it obviously implies not only in terms of a job but also for your business as well, for people who are doing their own work, who are freelancing as well. So for people who have their personal year 5, इस ईयर being the number of communication, आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आप जितना ज़्यादा सोशल सर्कल्स में उठोगे बैठोगे, गैदरिंग्स में, that is going to immensely benefit you this year. So you will be able to procure a name for yourself. आप अपने करियर में better out कर पाओगे. When you're meeting people, when you're putting out your thoughts there, आप उनको बता रहे हो कि आप किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हो for certain aspects in your life related to your career. That is how your career is going to progress this year. आप मिलो, आप बैठो, and then communicate करो अच्छे से what you're wanting out of the whole situation. Now on the health front, I feel कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी. Basically there can be issues with your back. आपके शोल्डर से लेके बैक तक में प्रॉब्लम हो सकता है. मे बी बिकॉज ऑफ अगेन कि आप 4 से 5 के मूवमेंट में आ रहे हो, बिकॉज इतना ज़्यादा आपने हैंडल किया है इन योर पर्सनल ईयर 4. सो यू कैन फील दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू बीन कैरिंग. उसकी वजह से आपको इस ईयर में कुछ बैक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. अगेन मूवमेंट कीजिए, बेसिक जो भी आप कर सकते हो, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अदरवाइज आपको थोड़ा सा आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आ सकता है यहाँ पे पर्सनल ईयर 5 में बिकॉज ऑफ योर बैक. अगर वहाँ पे प्रॉब्लम एरिया है तो वो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी न किसी तरीके से. दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट. मूविंग ऑन टू द गाइडेंस कार्ड. गाइडेंस जो है हमारी, इट इज़ टॉकिंग अबाउट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. आपको इस ईयर में आपके पास यू वांट टू एक्सपैंड योर हराइजन्स. आप किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाहते हो. यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग न्यू इन योर एग्जिस्टिंग करियर, रिलेशनशिप्स, बी इट एनीथिंग. आप किसी तरीके से मूव ऑन करना चाह रहे हो किसी रिलेशनशिप से. आपको वो पाथ दिखेगा, बट देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. आपको जब वो पाथ दिख रहा है तो आपको उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा. If you could resonate to the video, please to the cards as well. Please do not forget to like, share and subscribe the channel. And that would be it for number 5. Thank you so much.